Assalamu alaikum. My name is Fazal Wahab. You're watching my YouTube channel. We are solving class 7 mathematics. New countdown 7. This is book 7. And we did exercise 2A, question number 1, 2, 3, 4, 5 in the previous video. And today we will continue from question number 6. Question number 6 is express minus 2 upon minus 5 is a rational number whose denominator is 5 when its denominator is minus 15, when its denominator is 40, and when its denominator is minus 50. So minus 2 upon minus 5 is a rational number whose denominator is 5. It means that this minus 5 should become 5. What we have to do with the minus 5 to make it 5. So whatever you are doing with the minus 5 to make it 5, same thing will happen to minus 2. समझ में आ रहा है? हाँ, माइनस 5 को अगर हमने 5 बनाना है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि डिनोमिनेटर क्या होगा, 5 होगा. देखिए ये क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, और पार्ट 1 है, पार्ट 1, ठीक है. ये है माइनस 2 अपॉन माइनस 5 इज इक्वल टू, एक ऐसा नंबर बनाएं जिसका डिनोमिनेटर 5 हो. अब इसको इसके इक्वल करना है. हमने किस चीज़ से मल्टीप्लाई किया इसको? माइनस 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 5. देखें ये माइनस 5 है, मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कैंसिल नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, तो ये 5 आ रहा है. तो सेम इफ वी मल्टीप्लाइड माइनस 5 विद माइनस 1, द सेम थिंग विल हैपन टू दिस वन. माइनस 2 multiplied by minus 1. So minus minus plus 2 1 is 2. This is become 2. So now it's become 2 upon 5. Okay. So this is the question number part 1. Part 2 is minus yes, it is minus 15. Part 2 minus 15. Minus 2 upon minus 5 is equal to, here it is, the denominator is minus 15 given in the book. Minus 15 means the denominator, this minus 5 will become minus 15. Okay, so what we did, we multiplied minus 5 3 is a 15. Minus 5 multiplied by 3, because we are getting minus here. So plus minus minus. Okay, so multiplied by 3. So again the same thing will happen to this one, multiplied by 3. So 3 2 is 6, it is minus 6. Minus 6 upon minus 15 will become, okay. Part 3, look at the part 3. Part 3, the denominator should become 40. Denominator should become 40. So minus 2 upon minus 5 is equal to, the denominator should become 40. It has been given here in the book. Okay. Minus 5 multiplied by minus 8, same thing happened to this one. This will become minus minus plus 8 2 is 16. समझ में आ रहा है ना? कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ठीक है. And the last one is part 4 minus 50. Minus 2 upon minus 5 is equal to, the denominator should be equal to minus 50. 5 times 50, 2 times so 20. You are multiplying minus 5 with the 10 to make it minus 50. So the same thing will happen to minus 2 multiply, so minus 20. So this was question number 6. We did this one. Okay. Question number 7, express the following rational numbers with a positive denominator. With what? With a positive denominator. Means this one is minus 1. Okay. Positive, हमें क्या करना पड़ेगा कि जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है. क्या होना चाहिए? पॉजिटिव. So what we need to do, देखिए question part 1 will remain the same. Nothing will change because the denominator is already positive. So look at this one.
क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1. It is -7 upon 1. It's like this one, okay? So it is already positive, so the answer will remain the same. You don't have to bring any change in this one, okay? Okay, part 2. -5 upon -2. -5 upon Denominator -2. is in negative. So both are in negative. If we are changing this into positive, the -5 also will become positive. Why? You are multiplying this with -1. Minus minus plus. You are multiplying this with -1 to make it positive. Same thing will happen to this one. Minus minus plus, 5 1 is 5. ठीक है, देखें ये -2 है, अगर हमें इसको पॉजिटिव बनाना है तो -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको भी -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो आपके पास 5 माइनस माइनस प्लस 5 इस तरह से. पार्ट 3 जो हमारे पास आएगा उसमें भी ऐसे ही है. सब में ऐसे ही है. -31 अपॉन -3 मल्टीप्लाइड बाय -1 मल्टीप्लाइड बाय -1, यू आर गेटिंग +31 अपॉन +3 हो जाएगा. ठीक है, और जो लास्ट वन है ये विल रिमेन द सेम एज इट इज़ आ जाएगा. तो इससे माइनस को सिर्फ ऊपर ले जाइए, -9 के साथ लगा, 9 के साथ माइनस लगाइएगा, बाकी जो सेम आ जाएगा. ये माइनस, इसमें प्रॉब्लम पता है क्या होता है, ये जो माइनस है जिस तरह से ये होता है 9/5, एक्चुअली ये माइनस डिनोमिनेटर के साथ भी काउंट होता है, न्यूमिनेटर के साथ कोई मैटर नहीं करता. आप नीचे लगा दें या ऊपर लगा दें. तो जब उसने बोला हुआ है कि आप उसको कर दें पॉजिटिव का, तो इसको हम सिंपल ये कर दें कि माइनस को ऊपर ले जाएं और ये 5 नीचे ले जाएगा. ठीक है, माइनस न्यूमिनेटर के साथ हो या डिनोमिनेटर के साथ हो, एक्चुअली दोनों के लिए होता है, फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है, तो जब उसने बोला हुआ कि आप डिनोमिनेटर को पॉजिटिव रखें, देन पुट द माइनस साइन टू द न्यूमिनेटर. ठीक है, एंड यू विल गेट -9/-5, सो द आंसर विल रिमेन द सेम. तो ये आपका क्वेश्चन हो गया. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर, द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. अब नंबर लाइन भी हमने शो करना है, तो ये देखिए नंबर लाइन क्या होता है. आप इसको एक लाइन यू ड्रा कर लेते हैं, एक लाइन आपने ड्रा करी इस तरह से. ठीक है, और ये रेशनल नंबर है. तो -11/4 से आपको पता है क्या आता है, -11/4 अगर आप डिवाइड कर दें, -11 डिवाइडेड बाई 4, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा. -11 और 8 माइनस करें, सॉरी 11 माइनस 8 की माइनस तो ख़त्म हो गया, 3 आ जाएगा. ठीक है, आप पॉइंट लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं. 4 7 ज़ा 28 और फिर 2 आ जाएगा, फिर 24 5 ज़ा 20. ठीक है, तो -2.7 आ रहा है. क्या आ रहा है आपके पास, -2.7. तो अब आप ये देखिए, आपने क्या किया, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3, इस तरह से ये -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये -4 and so on. अब हमने ये नंबर शो करना है -11/4, यानी -2.75. -2 का मतलब -2 ये वाला, और 0.75 का मतलब क्या होता है, यानी 3/4 आ जाएगा. 3/4 का मतलब ये होता है कि 3/4, तो 4 में से 3 हिस्से. तो ये देखिए जो आगे 2 से लेके -3 तक है ना, इसको जब आप 4 पार्ट्स बना देंगे, देखें ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 हो जाएंगे, तो 3/4 आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा, ये वाला. अगर आप इसको ले लें तो ये 3/4 ये पॉइंट आ जाएगा, ये -11/4 हो जाएगा. ठीक है, नंबर लाइन के ऊपर ये वाला पॉइंट आ जाएगा, यानी 4 में से 3 हिस्से, -2 और -3 को 4 हिस्सों में तकसीम करें और 3 हिस्से होने चाहिए, तो कितने, 1 2 और 3. ये -2.75 या इसको -11/4 भी लिखते हैं. ठीक है, इस तरह से. दूसरा -2 है, तो -2 तो आपके पास ये नंबर आ जाएगा, इसलिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. ये -2 आपके पास आ रहा है. ठीक है, तो ऑलरेडी गिवन है. 2/5 का मतलब ये है कि 0.4, मतलब ये है कि 5 में से 2 हिस्से कर दें,
2/5 का मतलब क्या होता है? 2/5, 5 में से 2, ठीक है। तो अब ये 5 में से ये शुरू से देखिए, अब इसको यूँ कर लें, 0.4 बन जाता है ना ये वाला। अगर आप डिवाइड करें 2/5 कर देंगे तो 0.4 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको देखिए 0 से लेके काउंट करें, इसको 10 हिस्से कर देंगे ना तो इसके 4 हिस्से आ जाएंगे। 0.4 का मतलब ये देखिए, आपके पास ये लेट से आपके पास ये एक नंबर है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। तो ये आपके पास 1 है, लेट से ये 0 है, ये 1 है, ठीक है। तो 0.4 का मतलब क्या है? 1 2 3 4, ये पॉइंट हो जाएगा आपके पास, ये पॉइंट है, ये 0.4 हो गया। यानी ये इधर से लेके इधर तक 1 है, उस 1 को हमने 10 हिस्से कर दिए, और फिर 10 40 हिस्से। हाँ, अब उसको या दूसरे अल्फाज में इसको आप 5 हिस्से कर दें, यानी 5, इसको अगर आप इसको 5 हिस्से कर देंगे तो एक हिस्सा ये हो जाएगा, एक हिस्सा ये हो जाएगा, एक हिस्सा ये हो जाएगा, ये 2/5 बन रहा है इस तरह से। ये देखिए 1 2 3 4 5, तो फिर 2/5 का मतलब देखिए एग्जैक्टली वही है, 2 5 में से 2 हिस्से ये वाले। यानी मैं दोबारा इसको बना दूँ, लेट से मैंने बनाया हुआ है, एक ये आ रहा है, एक ये 5 हिस्से करने हैं उसको, जैसे दिया हुआ है इसमें, बस 5 ये 5 हो गए। 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 5, 5 हिस्से हो गए। 2/5 का मतलब क्या होगा? यानी 5 टोटल है, इसमें से 2 हिस्से, तो 5 टोटल, इसमें से 2 हिस्से ही हो जाएंगे, तो आपके पास ये आंसर आ गया। ये 2/5 क्या है? 2/5। इधर 0 है, इधर 1 है, तो इस नंबर लाइन में ये 0 है, ये 1 है, तो 5 हिस्सों में से 2 हिस्से कुछ ये पॉइंट बन जाएगा इस तरह से, इस तरह। लेकिन ये आप उसको इस तरीके से शो कर देंगे, तो नंबर लाइन के ऊपर शो करने का मतलब यही है, ठीक है। ये नंबर लाइन हम ड्रा करते हैं, ये नंबर लाइन बड़ा ड्रा कर देंगे तो ज़्यादा आसान हो जाता है, आप उसको छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। 4 इज़ -3/5, ठीक है। -3/5 को हम नंबर लाइन पे किस तरह से शो करते हैं, तो देखिए उसके लिए हम ये कर लेते हैं कि एक लाइन खींचते हैं। ये हमने एक लाइन खींच ली, लेट से ये हमारे पास एक लाइन है, ठीक है। और ये हमने लेट से कि 0 से स्टार्ट लेते हैं, 0, और ये है -1, लेट से कि आपके पास है -2 एंड सो ऑन, इस तरह की लंबी लाइन है, ठीक है। -2 एंड -3 इस तरह से, ठीक है। अब एक चीज़ जहन में रख लें कि हम -3/5 को हम स्टार्ट कहाँ से करें? ये -3/5 है, स्टार्ट 0 से करें, -1 से करें, -2 से करें, हर एक नंबर के लिए इस तरह से होता है। या फिर कि यहाँ पे अगर कोई नंबर नहीं है, होल में कोई नंबर नहीं है, तो फिर हम 0 से स्टार्ट करेंगे। और होल में नंबर जो नंबर जैसे मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक नंबर है, तो हम इसको 0 से स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपके पास हो, -1 होल 3/5 हो, तो फिर -1 से स्टार्ट करेंगे, ये -1 होल कंप्लीट आ जाएगा, ये -1 हो जाएगा, और 3/5 हम इसके अंदर में से निकालेंगे, इसमें से, ठीक है। या अगर आपके पास लेट से कि -2 होल 2/5 है, या 3/5 है, या 4/5 है, जो भी है, तो हम फिर देखिए जब ये नंबर होता है ना, तो ये हम फिर -2 तो हो गया कंप्लीट, यानी -2 होल है, ये तो कंप्लीट है हमारे पास, और बाकी जो 2/5 है ना, हम इस वाले आगे से निकालेंगे, -2 और 3 के दरमियान में से। तो पहले इसको ज़रा समझ लीजिएगा, ठीक है। जब यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो फिर हम 0 से स्टार्ट ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो फिर 0 से स्टार्ट ले लेंगे। और -3/5 का मतलब क्या है कि 5 में से 3 हिस्से, माइनस का मतलब माइनस में जाएंगे, और 3/5 का मतलब आप इस 0 से लेके -1 तक इसको 5 हिस्से कर दें, 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड ये 5, 5 हिस्से कर दिए हमने, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 5 में से 3, तो ये 1 2 3, ये हमारे पास आ रहा है, ये नंबर ये जो पॉइंट आ रहा है, ये है -3/5। यू गॉट दिस वन, ठीक है। इस तरह से पॉजिटिव नंबर में भी अगर आपके पास कोई इस तरह ये लेट से एक नंबर लाइन है, और आपके पास लेट ये 0 है, ये आपके पास 1 है, ये आपके पास 2 है, ये आपके पास 3 है, इस तरह का नंबर है, और आपके पास जो नंबर दिया हुआ कि 2 होल लेट से कि 2/7 है, या चले 3/7 है,
लेट्स एक नंबर है, मैं अपनी तरफ से नंबर दे रहा हूँ, मतलब ये दोनों सेम है, वो लेफ्ट पे जा रहे हैं, इसको ये राइट पे जा रहा है, ठीक है, पॉजिटिव, हम ये पॉजिटिव में आ रहा है, इन्हें जीरो से पॉजिटिव, ये आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और नेगेटिव इंटीजर, जीरो दरमियान में होता है, तो राइट से पॉजिटिव, लेफ्ट से नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। ये नंबर लाइन आपके पास, ये नंबर लाइन होती है, अगर आप एग्जैक्ट एक्चुअल नंबर लाइन आप ले लें इंटीजर्स को, तो ये होता है, दरमियान में ज़ीरो है, ये +1 है, ये +2 है, ये +3 एंड सो ऑन, इस तरह से ये -1, ये -2, ये -3 एंड सो ऑन, ये नंबर लाइन कहलाता है। क्या कहलाता है? नंबर लाइन कहलाता है। अब इसी के ऊपर कोई नंबर जैसे 2 होल 3/7 कहाँ पड़ रहा है, तो अगर मैं इसी नंबर पे ले लूँ तो 2 होल आपके पास दो नंबर तो ये हो गए, यानी ये सारे प्लस है, ठीक है। जीरो के राइट साइड पे प्लस होता है, कोई ज़रूरत नहीं होती, ये मैंने वैसे जस्ट शो करने के लिए यहाँ पे प्लस, जैसे मैंने यहाँ पे नहीं लगाया तो मैं इधर शो कर लेता, ये -1 इस तरफ -1 और -2 इस तरह से मैं इसके ऊपर शो कर रहा हूँ। तो 2 होल, तो 2 तो यहाँ तक हो गए, ये बाकी आपने क्या करना है, टोटल को 7 हिस्सों में बांटना है, 2 3 के बिटवीन 7 हिस्से कर देंगे और उसमें से 3 हिस्से ले लेंगे। तो लेट्स से अगर आपके पास ये 7 हिस्से करेंगे तो ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, ये 6 और ये 7, ये 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से 3 हिस्से ले ले तो 1 2 3, ये आपके पास ये नंबर, ये जो पॉइंट आ रहा है दैट इज कॉल्ड 2 होल 3/7 आपके पास ये आ गया। ये समझ में आ गया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे कि डू बोथ -2/3 and 2/-3 represent the same negative rational number? Yes, both are the same negative. ये नेगेटिव ऊपर हो या नीचे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपके पास क्या है, ये नेगेटिव रेशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये माइनस ऊपर है या नीचे है, ठीक है। तो ये हमारे पास सेम है। तो ये था एक्सरसाइज 2A। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2 भी हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।